अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे पैरोडी फिल्म के साथ और आज की फिल्म एक बार फिर चूड़ियाँ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਿੰਗੂਲਾ ਰੱਖਾ ਕੇ ਹਾਏ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਏ ये क्या कर रहे हो? एक मिनट ठहर जाओ कि बच्चे नचन दो आज खुशी का दिन ने क्यों? खुशी का दिन क्यों है? अब दूसरा ब्याह करने का राम है ए ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਮੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮੀ ਹੈ ओए होए, इसके साथ शादी कर ली तुम? हाँ जी मैं तो चौधरी साहब की बड़ी शुक्रगुजार हाँ। सारे पिंड के नाल इन्होंने मतक्का ला के मेरा निकाह किया। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ यार ਅਰੇ ਪਪੂਲਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ये मामी जी, ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੈ नवा मामी। बड़ी मुश्किल नाल ब्याह के लाए हैं अच्छा पूरा पिंड इकट्ठा हो गया अच्छा ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਝਗੜਾ ठीक, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ खलो गया। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਮਾਮੀ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਵਾਈਏ ਨਚਾਣ ਇਹ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ आपको तो याद होगा मैं और मेरे साथ एक और होता था। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਮੋਟੇ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ वो किधर है मोटा? ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ओए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੱਤ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਢੋਲਾ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਢੋਲਾ इंसान बना। सर क्या हो गया? थोड़ा सा डांस कर लेने दें। नहीं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਨੱਚਣਗੇ नहीं, बात करने दो उन्हें। ਹੋਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਫੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ साफी भी यही कुछ करते हैं आज। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਲੈਣੀ ਜਈ ਮੇਰੇ ये आराम न रही मैं तेन दस दवा ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮੁੰਜ ਦਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ। चौधरी साहब मैं सिर्फ थोड़ी वजह ने चुप है जेन च रखना। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ हाँ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਗੂੜਾ ਸੀ ਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਚੀਂ ਚੀਂ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਮਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ ओए होए, कुत्तों की लड़ाई में? ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਇਹ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟਰ ਹੈ अच्छा ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਓਏ ਉਹਦੇ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ छड़ दो तुसी किधरले पासे लगे मेरे नाल गल करो तुसी। आप कहाँ मिली थी पहले इन्हें? मैं भी मेले ते मिली सी मेला मवेशियों में। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਆ ਆਪ ਦੇ ਡੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ वैसे ये हुकूमत भी मेला मवेशियाँ शुरू करने जा रही है जो बड़ी देर से मुनक़ता है सिलसिला। ये बुज़दार साहब के हाथ से पहला अच्छा काम सरजद होने जा रहा है। ਹੋਰ ਕੋ ਮਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜੀ ਮਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਨਾ ਡੁੱਲਣ ਦਿਆ ਗਿੱਟਿਆ ਤੱਕ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੁੱਤ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਨਾ 10-10 ਗਨ ਮੈਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ 25-30 ਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਏ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਤਾ ਹੈ मैं अब तो सब बड़ी कम उम्र च शादी कर बैठी कितनी? हुन मतलब पहली शादी की बात कर रहे हो? ये हुन मेरी पहली शादी है चौधरी साहब दे नाल। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ नहीं मैं तो कभी यकीन करो घरों बाहर भी कदम नहीं सी रखा मेरे वालिदैन इन्ने सख्त लोग सन। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ इतनी पाबंदी थी क्या? ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ मामू आप बख्तू के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते? उसकी शादी क्यों नहीं करवाते? हुन बख्तू की शादी मैं आप करांगी। मेरी एक भांजी बड़ी खूबसूरत है ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ वो बहू मेरे वर्गी है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੌਕ ਹੌਗਨ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗੂੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ 4 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਏ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਵੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कौन भज्जा फिरदा? ਇਹ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੌਕਣ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਿਠਾਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਏ
ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮੀ ਚੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਚੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਮੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਐਸੇ ਮਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਸਵਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। 4 ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਡਾ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੀਲੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਇਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣੇ। ਮਾਮੀ 'ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ। अच्छा यार वो बिल्लो वगैरह किधर है? ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ अब ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਣੀ ਅੰਦਰ ਆਓ, आ जाओ। ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। वालेकुम जी। अच्छा ये बेवकूफ सी हर वक्त हंसती रहती है। ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਕੇ ਆਈਆਂ अच्छा ਕੁੜੀਆਂ। चौधरी मैं तेरी गल दस दियां, अपनी बच्ची ਨੂੰ कह देना कि मैनू अम्मी नहीं कहना। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਇਆ ਬੂ ਆਖਣ। अब्बा जी ये आपने क्या किया? ਚੁੱਪ। ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। अब्बा जी मैंने ते मां दा प्यार मिलिया ही नहीं। ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੜੋਲੇ ਦਾ ਬੜੋਲਾ। ਐ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ये इतने दिन क्या करती रही? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜਦੀ ਏ। शहर से तो हमाम है अपना। वैसे चौधरी बेहमियती की इंतहा है। तुम्हारी जवान बच्चियां हैं, तुम अपनी शादियां रचाते फिरते हो। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ घर बसाना तो उनका बसाओ ना, अपने ही बसाते जा रहे हैं। एक मिनट, हाँ जी। अच्छा चलो सब चलो ना, मैं जरा बाजार जाना, अपनी कुछ चीज़ें लेनियां ने। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਚਿੱਲੇ ਬੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇਹ ਥਲ ਗਈ ਸੀ ਜਨਾਬ अच्छा ਪੈਦਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਤੇ ਟੁਰ। यानी वहां से भंबोर चली गई होगी। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰ ਮਰੇ ਨੇ मोर थर पार्कर में मरे थे, ये थल है। शहजादे भी शिकार के लिए आते हैं। अब भी आते हैं। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਾਮੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਮਾਮੀ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਈ ਦਿਓਸਾਈ। आहा देवसाई प्लेन्स ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ दरिया में। ਹਾਂਜੀ। ਸਤੌਰ तो सर बड़ा खूबसूरत इलाका है। ओए दुनिया का सबसे खूबसूरत, ये कहते हैं ना कि द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट ऑन अर्थ, बैंफ कहते हैं कनाडा का, अल्बर्टा का शहर। अल्बर्टा वहाँ का प्रोविंस है जिसका कैपिटल आपको याद होना चाहिए। और मुझे यकीन आप में से किसी को याद नहीं होगा, सारी टीम गई थी, 90% लोग वहाँ पे उतरे थे। जहाज हमारा लैंड किया था जी। एडमिंटन किसी को याद नहीं? ये एडमिंटन ये बड़ा शहर है, वहाँ का कैपिटल है, लेकिन लोग ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं कैलगरी को कि कैलगरी वहाँ का कैपिटल है। नो, ये एडमिंटन है। एडमिंटन। और अल्बर्टा का खूबसूरत तरीन स्पॉट है बैंफ। आए बैंफ इंतहाई खूबसूरत, लेक लुईस है वहाँ पे। वहाँ पर जो दरिया है और उसकी एक खूबसूरत आबशार है जहाँ पे मार्लन मनरो ने फिल्म की थी वो। लेकिन ये सब एक तरफ, अगर आप डिस्ट्रिक्ट अस्तौर को थोड़ा सा डेवलप कर दें, आप भूल जाएंगे कि बैंफ भी कोई जगह थी। वहाँ पे एक झील थी खूबसूरत, लेक लुईस। दूसरी भी बहुत अच्छी थी, बहुत हसीन, मिनीवांका। लेकिन मिनीवांका मैन मेड थी, वो डैम की वजह से थी। जिस तरह आपने जेलम में, तरबेला में, मंगला में बना रखी हैं। आप अस्तौर जाकर देखें, वहाँ पर कदम कदम पर नेचुरल लेक्स। क्या बात। और कुछ लेक्स ऐसी हैं जो तोदा गिरने से, जैसे ये हुंजा के पास है अताबाद, लेकिन उसके छोटा मिनिएचर देखना हो तो अस्तौर में एक जगह है, रट्टू से आगे रास्ता जाता है, बड़ा टूटा फूटा रास्ता है, लेकिन क्या लेक है वो, दरले लेक, दरले कहते हैं उसे। दरिया एक जगह आके ना रुक गया क्योंकि मिट्टी के तोदे गिरे, दरिया का रास्ता रुक गया। वहां से दरिया जो निकल कर जाता है नीचे डाउन स्ट्रीम, छोटा, उसको कहते हैं मिनी श्रीनगर। बिल्कुल, अगर श्रीनगर किसी ने नहीं देखा, जाहिर है वो इंडिया में है, इंडिया वाला। और
किसी ने देखना हो तो अस्तौर जाकर छोटा श्रीनगर देखे, लेकिन अगर नहीं है तो सड़क नहीं है, मुनासिब पानी नहीं है। देखें कितना पानी, देखें, और वो सहूलतें जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, बिजली की सहूलत जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। हालांकि एक एक कदम पे टर्बाइंस लगी हुई हैं। बस इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, फिर देखें आधे से ज़्यादा हमारे प्रोविंसेस से लोग वहाँ जाकर आबाद हो जाएंगे। बस शेर साहब मैं तो मेरी दा इरादा कैंसिल, अस्तर ही जाना मैं ते। ਮਾਮੀ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਲਾ ਕੱਟਣ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੀਲਾ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ। चलो उठो ना, जाना नहीं की तुहानू मैं कही जानी उठो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੱਦਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। मैं उठ खड़ी होई ना ते तेन पता नहीं होना की है। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੇ। अच्छा, ये जो बड़ी मामी है ना, हाँ जी, ये थोड़ा थोड़ा डर रहा है वैसे। ये चिंची भी चला सकता है। कौन? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮੀ। ਮਾਮੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਿਫ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈਏ। दोनों में से कौन सी? ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो तीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि मुश्किलात से 2-4 फिल्म स्टार मीरा का पाकिस्तान छोड़ने का फैसला। Of course, Safi, I am go to the abroad and some days later. अब्रॉड मैं जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे। आफे मेरे साथ पिक्चर्स बनवा ले, फिर मैंने नजर नहीं आना। Don't call me another Afi. Excuse me, ठहर जाओ एक मिनट। देखिए मेरी बात सुनिए। ला तादाद हदवाने एक मिनट ठहर जाओ। अच्छा जी, उन्हें बात कर लेने दो। ठहर जाओ, उन्होंने क्यों गल करन दे? ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ठहर जा भाई, जे तू ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। कम से कम आप अपने मसाइल मुझे बताएं कि क्या मैं हूं ना। बात सुनो, तुम हो क्या? मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूं। ए गुमनाम गोल चक्कर। गुमनाम गोल चक्कर। क्या आ गया? आप हमारी तरफ देखे ना, मैं वो लोग। मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे पिक्चर बनाना चाहता हूं, तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको उसमें हीरोइन लूं। मुझे लोकेशंस बताएं, कहाँ शूटिंग करनी है आपने? हाँ है अपनी गुफ्तगू शुरू। 2 मिनट आप जरा खामोश रहिएगा, मैं उनसे बात कर। अच्छा मीरा जी, मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ। लोकेशन कौन सी? तो नारायण साइड पे, नारायण से थोड़ा सा आगे जाए ना, बाबू सर की तरफ। बटाकुंडी से जी, बटाकुंडी, ये मेरी लोकेशन मैंने मार्क की हुई है। पहली गलती उत्थे ठंड बहुत होंदी, जिस कौम नाल तेरा ताल्लुक है ना। बाबा मैं कसौन मार के ना आखिरी बाबा भी कायनात दा खत्म कर देना। बेटा कुंडी आपने देखा? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ जगह पुत्र नहीं वेखी जिथों सब तो पहले पत्थर रगड़ के अग बनी सी ना, वो जगह भी इन्हें देखी। झीलें कितनी प्यारी होती हैं वहाँ। बटाकुंडी से आगे है लल्लूसर, हेलो, पाकिस्तान की सबसे हसीन झील। लल्लूसर इसलिए बहुत हसीन लगती है कि बहुत खूबसूरत दरिया उसमें से कुनहार निकल रहा है, वो एक बड़ी ब्यूटी है। अस्तर की कोई और जगह भी बताया ना आपने। अस्तौर का तो एक एक चप्पा। आप अस्तौर जाएं और कहें मैंने रामा लेक जाना है, हेलो, रामा रात होगी, सुबह उठते ही आपकी पहली नजर पता है किस पे पड़ेगी? राका पोशी। नागा पर्वत। नागा पर्वत उधर है। राका पोशी तो हुंजा है। हेलो, इन पता कोई नहीं है, छड़दा है। अच्छा बल्कि और फिर तुसी कोशिश कर रहे हो उन्हें बेचे राका शूकी नाका पाकी पाले। नहीं, वो उधर ही है, इलाका तो वही है। बल्तिस्तान है, स्कर्दू, ये गिलगित है, तो राका पोशी भी इधर ही है। फर्क ये है कि अस्तौर में जो नजर आती है वो नागा पर्वत है। नागा पर्वत बहुत बड़ी चोटी है, बहुत ऊंची, किलर माउंटेन कहते हैं उसे। हर साल ये जो हाइकर्स मरते हैं सबसे ज्यादा यहाँ। अच्छा जी, ये किलर माउंटेन यानी ये इतना डरावना क्यों है? डरावना नहीं है, तो बहुत हसीन पार्ट। उसी के नीचे यानी उसके फुट पर पहाड़ी चढ़ने से पहले जो इलाका है उसको फेरी मैडोज कहते हैं। कभी फेरी मैडोज यानी परियों का देश है। परियों की वो चरागाहें ऐसी हैं, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना बर्फ के ऊपर, वहां पे हैं क्रेविसेस में अगर पैर फंस गया तो आप 5000 फुट नीचे धंसते। माफ कर दो, मैं इतने शूटिंग नहीं कर रहा। और अगर आप जैसा बंदा उस सतह पे पैर रख दे, क्रेविसेस जो आवाज आनी हुई मैं मर गया। इतने खूबसूरत इलाके है ये, यहाँ पे शूटिंग हुई हो। देखिए मैं तो आपको हीरोइन लेके इसी जगह पे शूटिंग करना चाहता हूँ। आप कितने मान इन्वेस्टमेंट करेंगे? हीरो आप आएंगे? जी मैं सोचता तो यही हूँ कि हीरो मैं खुद। अगर ये होया भी तो ठप्पे लांदा आएगा। आप ना नागा पर्वत का रोल करें।
वो बड़ा घबराए बिल्लेर का मुंह है तेरा मेरे को तो छेछड़े देख के ये हो जा बिल्ला दूध पी दी बजाय चरस पी ले और जनाब छड्डो इन्हां दियां गल्लां नूं हड़प्पे दे बारे तुहाडा की ख्याल है कहो इत्थे ओदा ताया निकलिया सी अच्छा मेरी बात सुनो बाबा जी 1 मिनट जी गाने बताएं फिल्म में कहते आप गाने होंगे क्योंकि प्रोड्यूसर भी थोड़ा पीछे गए अभी गल करूं तो मेरे कहते पिच पिच देखिए मैं आपको अपनी फिल्म में पिच पिच जब आपके ऊपर गाना एक्सपोज हो गया ना पिच पिच तो जो लोग सिनेमा में आएंगे आपकी फिल्म देखेंगे कहेंगे पिच पिच और फिल्म बहुत बिजनेस करेगी पिच पिच ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਚ ਪਿਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਚ ਪਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਚ ਪਿਚ और पिच पिच आप ठीक है कहने वाली बात नहीं है आप तो इंतहाई कूड़ा आदमी ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ओ यार छट बाबा अच्छा बाबे को हुज्जा मारा ना तो बाबे ने मर जाना नहीं बाबा नहीं मरता लेकिन आप ये थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पैर रखें कैसा एमक है ब्रेक पे पैर रख रहा कहता है एक्सीलेटर पे अच्छा उन्हें बुखला दिया इस कदर मुझे बुखला दिया क्या वो भी साला पिट 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 कर रहा है वो भी पिट 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 बाबा तू को नहीं मैं पिच पिच करन लगा सा मगर तेरी शक्ल देखी वो विचे रह गई सब फजूल बातें कर रहे हैं ये एम्बियंस देखकर मेरी गल सुन मुझे ओ मुंडे करो बाबा सौखे मैं ने सच्ची मुच्ची तेनु मार छड़ना मैं दाद अच्छा जी वो एम्बियंस की बात कर रहे हैं एम्बियंस देखकर ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरा अब थोड़ा थोड़ा जो माइंड है वो चेंज हो रहा है अच्छा आप इस तरह बैठे ना आपका अभ्यास नजर आ रहा है इसी जगह मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ शूट करूं ना क्योंकि ये मेरे स्क्रिप्ट में बहुत मुझे सूट कर रहा है और दूसरी बात ये है कि आप ये कलाबाजी लग ये कितना अजीब लग रहा है छोटी सी टांग उठा के मोटे से वजूद पे रखे वैसे ये जो डायरेक्टर है ना इसका ग्रैंजर बहुत है ये मैं कई दफा कह चुका हूं कि गॉडफादर का वो क्लेमेंजा बिल्कुल क्लेमेंजा लगता है नहीं क्लेमेंजा लंबा था बस सुने नहीं क्लेमेंजा नाटा मोटा चौड़ा वो जो था वो टेसियो था टेसियो और वो जो बहुत दहूश था वो लूका ब्रासी था वो लूका ब्रासी था ना ये मोटा ब्रासी इसी बात से मुझे याद आ गया नहीं मैं इंग्लिश मूवी भी बनाना चाहता हूँ और दूसरी बात ये कि जो आपका ये चैनल है क्या नाम है आप न्यूज जी उसमें जो 8 बजे वाला स्लॉट है प्राइम टाइम जी जी उस पे मैं चाहता हूं कि मैं एक मतलब जैसे बहुत से एंकर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता उनकी तरह बैठ के मैं 1 घंटे का शो करना चाहता हूं हमने ऑलरेडी 8 बजे वाली स्लॉट किसी को दे दी है ਤੁਸੀਂ ਸਲੌਟ ਲਵੋ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈ आपका एक नुस्खा हमारे गले ही पड़ गया है कौन सा नुस्खा वो जो आपने कहा था कि बरसात हो तो 4 रुपए के साथ प्याज बांध दो ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਉੱਥੇ ਲਸਣ ਵੀ ਬੰਨਿਆ टमाटर भी बने सब बह के सब्जी बेचने लग पे अच्छा आफ्ताब ये एक अजीब इत्तेफाक है जी जी कौन सी जनाब ठहर जा बाबा तेन मैं आफ्ताब साहब कह सकदा तेरे वर्गा गिलास हुंदा जिहदे च आटा पा के ना अगरबत्तियां लाईयां हुंदियां कर बाबा जी अगर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਹਾ ਲੋਗੇ Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat आज का गाना हमने फिल्म इश्क न पूछे ज़ात से लिया है. ये हज़ीन कादरी की पोइट्री है और निहायत शानदार कंपोजिशन है वजाहत अत्रे की. गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़. ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ के जिवे जवानी वग
नदी दा पानी परदेसिया वे तू भी लग जाएगा किनारे चेते करेगा जाके इस राह दे नजारे जे सानू याद रख ले ए तेरी मेहरबानी वगदी नदी दा पानी किन्निया मुसाफिरां नू अज तक मैं पार लाया अल्लाह दी कसम इक भी तेरे जया नहीं आया अखियां दी बात बुझ ले की आखिए जुबानी वगदी नदी दा पानी ए पल दी पल दा औना मैं ते नयो भुलाउणा ए मेरे दिल दी गल वे तेरे दिल दी मैं की जाना तेरी खैर होवे शाला दे जा कोई निशानी वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा जाके जिवें जवानी वगदी नदी दा पानी ब्रावा ब्रावा वेलकम बैक जी नाब। खबर है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान बिरयानी पर झगड़ने वाले 9 अफराद हवालात जा पहुंचे। अरे ये क्या किस्सा है? ये यूपी का वाक़या है। मुजफ्फरनगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान वहाँ पर बिरयानी की देगें खोल दी गई और वहाँ पे कानून है, हमारी तरह नहीं है कि बिरयानी की प्लेट पे बिक जाने वाले वोटर्स वहाँ पर भी बिकते हैं, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देग वेग के ऊपर बिक जाते हैं। वहाँ पर कानून ये इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, कंपैरेटिवली हमारे मुकाबले में बड़ा तगड़ा है। उसकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि खाना अगर आपने देना है तो उसकी पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी इंतज़ामिया से कि हमने खाना देना है, ताकि आपके मद्दे मुकाबिल को पता हो कि एक खाना दिया जा रहा है, मैं भी एक खाना दे दूं। दूसरा, आपके अखराजात का एक सरकारी तखमीना जब लगाना पड़े तो जनाब इन्होंने 9 खाने भी दिए थे, फी खाना उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पर मामलात कुछ और शुरू हो गए। मौलाना जमील वहाँ पे कांग्रेसी कैंडिडेट थे, ये पहले बीजेपी में होते थे, तो रिविजनिस्ट थे, वो छोड़कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस का और मुख्तलिफ जमातों का वहाँ पे इत्तेहाद है और वहाँ पे कदरे तगड़ी है कांग्रेस। बाकायदा अपील की गई है सुन्नी मुसलमानों से, तो कहा गया है कि आपने बीजेपी को वोट नहीं देना और बीजेपी की पोजीशन मुसलमानों ने बहुत पतली कर देनी है, क्योंकि मुसलमानों पर अरसा हयात जितना बीजेपी ने और वो भी मोदी सरकार ने तंग किया है, शायद ही कभी किसी ने किया हो। तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर मुस्लिम्स का होगा, दूसरा बेरोजगार नौजवान जिन्हें सब्ज बाग दिखाए गए थे जॉब्स के, तो जॉबलेसनेस तो बहुत बढ़ गई है। तो कंपैरेटिवली कांग्रेस की पोजीशन यूपी में बेहतर है और यूपी वोट्स के हिसाब से, लोकसभा में सीट्स की तादाद के हवाले से सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की। जैसे हमारे यहाँ पंजाब है, जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया। सर यूपी की 47 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमान और दलित वोटर्स की अक्सरियत है। जी, 47 सीट्स आउट ऑफ 80। बहुत बड़ा गेम चेंजर फैक्टर है, बहुत बड़ा गेम चेंजर। जी आफ्ताब साहब, क्या मोदी ये इलेक्शन जीत पाएगा? मोदी इलेक्शन
जीतना कोई ज़्यादा अहमियत नहीं, अक्सरियत लेकर आना। और अगर सिंपल मेजॉरिटी 272 सीटें अगर वो ले भी लेते हैं तो एक बड़ी फ्रेजाइल सी हुकूमत बनाकर कुछ हासिल उसूल नहीं कर पाएंगे। ये चाहे जितना मर्जी शोर मचाएं, डेंट इन्हें ठीक ठाक पड़ा है, क्योंकि इंतखाबी वादे ये पूरे तो करना बहुत दूर की बात है, 50% भी नहीं कर सके, और 3-4 मेजर काउंट्स पे बहुत बदनाम हुए। इनको अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो करप्शन का पैसा है, उधर भी और इधर भी। इधर वालों को तो नहीं बचाया, उधर अभी देखना बाकी है। जरा हमारी भी बात सुन लीजिए। आप कौन हैं श्रीमती जी? ये जो वाक्य सुना रहे थे ना आप, वो हमारे साथ ही हुआ है। आप इनके हस्बैंड हैं? नहीं जी, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, क्योंकि आमतौर पर जब हम यहाँ पे कुछ स्टेज करते हैं तो आप इनके हस्बैंड बनते हैं। ये वोटर हैं जी, इनसे पूछिए, इनसे लड़ाई हुई है। जाहिर बात है, देखिए आप जब बिरयानी की देख खोलेंगे, हम सुबह से वहां खड़े हुए हैं, हमने वोट डाला है और सारी लाइन जो है वो भूखी खड़ी है। जब बिरयानी खोल के खाएंगे नहीं? अब बिरयानी वर्कर्स के लिए थी भाई, वोटर्स के लिए नहीं थी भाई। तो हमें बताया जाता ना कि वर्कर्स के लिए है। अच्छा, ये यूपी में मेलसी की आमेजिश लग रही है, सराइकी की आमेजिश लग रही है। अब मेरा आना जाना लगा रहता है। मेरे अभाव अजदाद जो है वो बीकानेर से आए थे। हम तो वोटर हैं, हमें बताना चाहिए था ना कि ये खाना वर्कर्स के लिए है, हम ना खाते। अभी आपने वोट डाला ही नहीं, पहले खाना शुरू कर दिया। बिरयानी भी मेरी फेवरेट बनी थी, बॉम्बे बिरयानी। आए बम्बे बिरयानी मिसाले वाली। आप यकीन करें मेरी बहन, अगर वो उस बिरयानी की खुशबू आप तक आती, आप यहाँ से जाके खाती वो बिरयानी। बिरयानी अच्छी थी, पकड़ते पकड़ते मैंने भी 2-3 बुर्कियां लगा ली। ये बुर्की क्या होती है यार, कमाल है। आप लुकमा कहें, नवाला कहें। वो सारा सीधा लुधियाने दे है, भी शुक्र करो मैं इन्हीं को बोलती है। अच्छा, तो आप लुधियाने से यहाँ क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर की है जी सरकार ने, इलेक्शन ड्यूटी है जी। सर बिरयानी कहाँ की मशहूर है? हैदराबाद की, कराची की, बॉम्बे की। ये तुसी बबली बिरयानी। बिरयानी बड़ी मशहूर है। इसमें वाली बिरयानी होती है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे नहीं पसंद है भाई। आपको पुलाव पसंद है? नंबर 1 पुलाव पता कौन सा है? अल्लाह ताड़ियां खैरा, पहले दुआवां ले लो। अमृतसरी अफगानी पुलाव भी बहुत बढ़िया। गंगा जमनी। और ये जो कह रहे हैं भाई साहब अफगानी पुलाव, ये भी कमाल है। मैं एक बार ही खाता जी, पिछो पिस्टल निकल आया। अरे ये गंगा जमनी पुलाव क्या है? गंगा जमनी ज्वेलरी नहीं देखी कभी? मैं खुश रहा हूं। गंगा और जमुना के 2 मुख्तलिफ रंग हैं, एक सिल्वर है, दूसरा थोड़ा सा गोल्डन है। तो सिल्वर और गोल्डन मिलते हैं जब, तो इसको गंगा जमनी कहते हैं। कटलरी में भी ये होता है। और पुलाव में एक डार्क ब्राउन है, एक लाइट ब्राउन तय है उसमें। और क्या ट्रीटमेंट है गोश्त की। तुझे रिज़्क दिए, एहतराम ऐसा कर दो कि सुभान अल्लाह। सर आलू वाली बिरयानी भी फाइनल होती है। नहीं, दिल्ली की बिरयानी में आलू पड़ते हैं। सर दिल्ली वाली में तो आलू नहीं, सिर्फ कीमा भी और चने की दाल पड़ती है थोड़ी सी। बिरयानी की अगर आप तारीख पढ़ लेना जी, तो यकीन कीजिए आपको बड़ी मायूसी होगी। ये इब्तदान गुरबा का खाना था, जब घर में 5-6 दिन का सालन इकट्ठा हो जाता और कुछ भी ना होता तो वालदा साहिबा वो सब कुछ चावलों में डाल देती। जी जी जी, बहुत अच्छे। तब बिरयानी वजूद में आई। बिरयानी एक तरह का नौलखा है। नौलखा याद है ना? नौलखा एक डिश है जो जितना कुछ है सारा इकट्ठा करें और गर्म करके पेश कर दें। एक शाही खिचड़ी भी होती है जी। भाई खिचड़ी तो इन सबसे सुपीरियर चीज है। ये बादशाहों के लिए बनती थी। और ये खिचड़ी के नाम पर तोहमत है। ये बिल्कुल खिचड़ी नहीं है, इसको ऐसे ढकोसला है खिचड़ी। और ये अकबर की इख्तरा थी। अकबर, आपको पता है अकबर मरा कैसे था? डायसेंट्री से। उसकी अंतड़ियों में अल्सर की कोई अजीबोगरीब किस्म थी। क्यों? खा खा के तीतर, बटेर, तिलौर, हिरन, शिकार ही खाता था वो तो नीम जंगली सी लाइफ थी उसकी। नहीं तो हाँ, जेडे परिंदे पुरुंदे, ये तो अच्छा हुंदा गोश्त जी। अच्छा, थोड़ा खाना चाहिए, ये हद से ज्यादा खाएंगे शदीद गर्म होता है। बादशाह हमेशा ज्यादा खांदे। तो उसको हकीम ने कहा कि महाबली आपको हाथ हौला रखें, ये जो गोश्त पर आप बेदरेक टूट पड़ते हैं इसे कम करें। तो उन्होंने कहा बताओ मैं क्या खाऊं? उन्होंने कहा हल्की ग़िज़ा। हल्की ग़िज़ा क्या है? उन्होंने कहा खिचड़ी। तो चलें जनाब, शाही खिचड़ी बनेगी। शाही खिचड़ी क्या थी? खुद रेसिपी बताते थे मौसूफ। वो इतने से चावल डाल लो और ढेर सारा उसमें गोश्त। एक बार कराची भी गई थी, वहाँ की स्टूडेंट बिरयानी है ना, बड़े शौक से खाती हूँ मैं। हाय नी भैन, बड़ियां मिर्चां ने ओदे च, मैं खा के वेखी है। कराची में तो पाव के हिसाब से मिलती है बिरयानी। 1 पाव, आधा किलो, 3 पाव बिरयानी। जो कुछ भी है इसमें जान पता क्या चीज है? बासमती राइस, जो कि अब अनका ही हो गए, मिलते ही नहीं है। और ये हमारी
दुआबे की इख्तरा है बासमती, लेकिन वो मशहूर इंडियन राइस के तौर पे होता है। इंडियन एक राइस है जी, टिल्डा। टिल्डा वो शिमला में होता है और बड़ा खुशबूदार और बड़ा अच्छा, इतना इतना लंबा राइस। लेकिन पाकिस्तानी बासमती जो है वो इंडियन नाम से पूरे गल्फ में वो बेची जाती है। पाकिस्तानी राइस मंगवा के उससे रीपैक करके तो वो टिल्डा के नाम पे बिकता है। सर हम 18 सालों से इस पे कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चूंकि बहुत नालायक हैं, हम 1800 साल तक भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए टिल्डा की मौज लगी रहेगी। आप देखिए नमक के साथ हम क्या कर रहे हैं। देखिए नमक हमारे यहां से लेकर हमसे सस्ता पूरी दुनिया को फराम करते हैं। देखिए हिमालयन सॉल्ट के नाम से, हिमालयन सॉल्ट। और वो जो बकरे का पेट चाक करके चावल भरते हैं वो क्या नाम है उसका? बुखारी। मेरे दादाजी खरगोश का पेट चाक करके उसमें भरते थे चावल। खरगोश च किन्ने के चावल आ जाते मरे पाइया चावल नहीं आते। खरगोश का सालन बनता है, उसे कहते हैं बहुत लजीज है, लेकिन मुझे वो कोई लज्जत में भी ऐसा इंप्रेस नहीं किया। लेकिन जिस पर मरते हैं लोग वो है कछुए का गोश्त। कछुआ सर हलाल है? यस, सी फूड है भाई। मैंने तो नहीं खाया, लेकिन आपने कभी कछुआ पकवाया? नहीं पुत्र, फड़ेगा तेरा अब्बा ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਛਵਾ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਖਪਤੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਡੰਡੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਡੈਮ ਬੱਚਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। वाह, चिट्टे चावल ऊपर साबुत मसर डालें, चिट्टे चावल, काले चने। सुभान अल्लाह, छोटा देसी चना। रिज़्क तेरे हथ होना चाहिए बस। अल्लाह तो बात तेरे हथ में बंदा तेरे को लगा ला पाई मैनू नहीं मैनू तो आप बात करते करेले गोश्त की। पुत्र इन्नी नहीं बोटी ते लम्मा करेला लम्मा प्याज भुनिया में सही। सर इसमें ऐसे गोश्त कौन सा अच्छा होता है करेलों में? उठ का, दस्ती का। सुभान अल्लाह, अल्लाह सच्चा जानता है। अंदरों दुआवां निकलदियां। अब्बा तू बहुत करेले खादे, तेरी शक्लों लग रहा है। पुत्र उन्हें कहा ना जो पुठ दा गोश्त मां दी दाल च पैंदा ही, करेलियां च पैंदा मेरे बच्चिया। तेरे वर्गे बदतमीज मूंगरियां च भी पालने। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।